Okay, Peter. So, as a plan of a quick revision of the entire syllabus, I'm going to start it from obviously the chapter number one. So, the plan for today is atomic structure and a bonding stuff. Yeah, atomic structure के साथ moles कर लेंगे and then we'll move forward. Okay, देखिए ये तो बहुत एक सिंपल सा स्टेप है कि you all should know how to find out the number of subatomic particle in a neutral atom, in a molecule, in a positive ion, or in a negative ion. ठीक है, but you should have an idea about the relative charge and the relative masses. O levels वाला stuff है, हम अच्छे तरीके से जानते हैं, and that's where we started our chemistry syllabus. ठीक है, so yes, proton plus one, neutron zero, electron minus one, relative masses are 1, 1, and electrons have a negligible mass. On the basis of this, there is a diagram that shows that the deflection of electron is much more as compared to the deflection of proton. They could ask this diagram in different ways, but the key concept is कि आपको ये बात हमेशा याद रहे कि electron deflected more as compared to proton. And if they ask you why the deflection of electron is more than proton, although they have the similar magnitude of charges, because they have different masses. A smaller charged particle like electron show more deflection as compared to proton. आगे चलते हैं और yes, आप सबको ये पता होना चाहिए कि how to find out the number of electron, proton, and neutron. So yes, this is the nucleon number, which is the number of electron, proton plus neutron. This is the number of proton or electron. Nucleon number basically is the mass of an atom. Okay, and all the physical properties of an atom or element depends on its mass number, its AR, or its nucleon number. Okay, in a similar way, proton number is the identity of an element. All the elements arranged in a periodic table on the basis of increase in the proton number. ठीक है, so yes, ये तो आप आराम से कैलकुलेट कर लेंगे. आयंस में भी आप ये करना जानते हैं कि ऐसे इट इज अ पॉजिटिव आयन, आप सिमिलर तरीके से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन कैलकुलेट करेंगे, बट आप एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे. ठीक है, because it has a +1 charge, or 2 electrons add कर देंगे, as in a case of a silver, because it has a -2 charge. सही है बेटा? So that's how you're going to find out the number of electron, proton and neutron in any atom. सही है, आगे चलते हैं बेटा. In a molecule, yes, just add the electron, proton, and neutron of all these elements, add them up, and give the total number. Simple सी बात है. But if you have a ion with a -1 charge or a +1 charge, आप उसमें भी यही करेंगे कि -1 में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कर देंगे और +1 में एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे. ठीक है, आइसोटोप, yes, you should know the definition of an isotope. Major issue जो आता है वो definitions में आता है. You are not paying attention to the correct like the wording of the definition, and you're always missing this stuff. So they ask this definition in two different ways. They can simply ask define isotopes. ठीक है, तो अगर ये definition ये कह रहा है, तो you can write both of these definition. Atoms of the same element, this is a part of a definition. यानी आपको ये बात जरूर लिखनी है कि basically atoms of the same element, यानी proton number same होना चाहिए, having the same proton number but different nucleon number. Or the second definition, in terms of subatomic particles. Subatomic particles, electron, proton, and neutron. So atoms of the same element having the same number of electrons and proton, but different number of neutron. ठीक है, so अगर वो आपसे बोलता है define isotope, so you can write any of these definition. लेकिन अगर वो आपसे कहता है कि define isotope in terms of subatomic particle, तो आपको ये second definition लिखनी है. और अगर वो कहता है define isotope in terms of the nucleon number and proton number, तो first definition लिखनी है. ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि डिपेंड्स ऑन हाउ दे आस्किंग द डेफिनेशन, आपको ये लिखनी है. और जब आपसे पूछा जाएगा कि विच टू ऑफ दीज एलिमेंट आर द आइसोटोप ऑफ ईच अदर, और उनके प्रोटॉन नंबर और न्यूक्लियन, उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स गिवन होंगे. ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा एटम्स विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपने पिक करना होगा. ठीक है, जैसे हाइड्रोजन 1, 1 और हाइड्रोजन 1, 2, यानी हाइड्रोजन के ये 3 आइसोटोप्स हैं, आपको सेम प्रोटॉन नंबर
और अगर अलग अलग मैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन लिख दूंगा तो यू हैव टू pick the one in which the electron and proton are same but the neutrons are different. ठीक है, isotope have the same chemical properties but different physical properties. Again the same reason why chemical properties are same, because they have the same number of outermost electron or the same number of electron. Why the physical properties are different? Because they have a different masses. ठीक है, ये बात याद रखनी है कि chemical और physical properties different हो सकती हैं. Very common questions in which they give you the isotopes molecule in a form of an isotope like D2O, OD negative, OH negative, और आपको इसमें number of electrons, protons and neutrons निकालने आने चाहिए. देखिए isotopes का सिंबल डिफरेंट है ना, H2O के बजाय D2O दिया. Why they have a different symbol? Because they have a different nucleon number. सिर्फ न्यूक्लियन नंबर ही डिफरेंट होगा सिंबल डिफरेंट होने की वजह से. और आपको सिर्फ क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सही से चेक करने हैं कि आपने सही कैलकुलेट करें फॉर दिस आइसोटोप और नॉट. और एक बहुत कॉमन क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है. दे गिव यू टू 4 options and before giving that option the question के which of these atoms, which of these have more electrons than protons and more protons than neutron. ठीक है, एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है इस लेवल तक. तो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि यस आपको फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड देन यू हैव टू मैच विद द स्टेटमेंट के किसमें इलेक्ट्रॉन से ज्यादा प्रोटॉन और प्रोटॉन से ज्यादा न्यूट्रॉन है, वट एवर द स्टेटमेंट वॉज गिवन. ठीक है, हाउ टू फाइंड आउट द एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास. यस, यहाँ से ऑनवर्ड हम जा रहे हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरफ. ठीक है ना, द टेक्निक यूज इज मास स्पेक्ट्रोस्कोपी. मैंने इस स्टेज पे आपको मास स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं कराई थी, तो मैं यहाँ पर भी ऐसे ही करूंगा. आई एम जस्ट गोइंग टू रिकॉल द फॉर्मूला किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं. सो यू आर प्रोवाइडेड विद द परसेंटेज अबंडेंस लाइक 75%, 25%, और बाय द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ऑल द नेचुरली अकरिंग आइसोटोप. ठीक है, और आपको उनका परसेंटेज का रेशियो कैलकुलेट करना है. सो यू कैन सी द न्यूक्लियन नंबर 35 वाला है 75% प्लस 37 वाला है 25%. अगर कोई थर्ड होता तो मैं उसे भी ऐड करता आगे. इस तरह के रेशियोज में ऐड कर दूंगा डिवाइडेड बाय द टोटल परसेंटेज. इन दिस केस द टोटल परसेंटेज इज 100%. तो मैंने डिवाइडेड बाय 100 कर दिया और मेरे पास एक एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास आ गया विच इज दिस वन. अब इफ दे आस्क यू द डेफिनेशन ऑफ एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास, तो आप लिखेंगे दिस इज द एवरेज मास ऑफ ऑल द नेचुरली अकरिंग आइसोटोप on a scale where the mass of one atom of carbon is 12 units. ठीक है, if they ask you the definition of average relative atomic mass, तो definition क्या लिखोगे कि it is the average of average mass of all the naturally occurring isotopes on a scale where the mass of one atom of carbon 12 is exactly 12 units. ठीक है बेटा, आई होप कि आपको ये इस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना बहुत अच्छे तरीके से आते हैं. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. दे गिव यू द like the relative abundance or the percentage abundance in terms of the graph. तो अगर ग्राफ है तो यस 10 वाला 1 टाइम, 11 वाला इतने टाइम. अच्छा, इसमें ये भी होता है कि सम टाइम दे गिव यू द AR वैल्यू. ठीक है, एंड दे आस्क यू द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर आइसोटोप. ठीक है, जैसे ये 1 की जगह पर आप x लगाएंगे एंड देन यू कैन solve this one to find out the value of x, which is the percentage of the isotope with the nucleon number 10. ठीक है, in a similar way वो किसी एक की percentage भी missing हो सकती है. There are many questions in past paper, so आप बहुत आराम से इसकी आपने practice कर ली. ठीक है, उसके बाद हम mass spectroscopy की तरफ गए थे and before moving towards mass spectroscopy, वो मैं end में हम उसको देखेंगे. Atomic structure में electronic configuration is the major like the topic. Electronic configuration like the filling of electron. आप सबको आता है कि yes, S can accommodate max, S subshell can accommodate maximum of 2 electron, P में 6, D में 10 और F में 14. So the formula to find out the maximum number of electron in any shell is 2n square. So energy sequence भी आपको याद है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s fills before 3d. So 4s आता है, फिर 3d आता है, फिर 4p, 5s, फिर 4d आता है और उसके बाद जो है वो 4p के बाद यस उसके बाद 4d आता है, फिर उसके बाद p ऑर्बिटल जो है वो 5 ऑर्बिटल कंटिन्यू होता है 5p ऑनवर्ड. यानी की पॉइंट ये है कि आपको 3d से पहले 4s फिल करना है, 4d से पहले आपको 5s फिल करना है. ठीक है, d
सब शेल, हर शेल का 4s के बाद फिल होगा अगले शेल से, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर हमने कंटिन्यू किया था कॉन्सेप्ट कि 4s को 3d से पहले फिल किया था, इसी तरह से 5s को 4d से पहले फिल किया और अब 5p ऑनवर्ड ये कंटिन्यू होगा। तो हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रोटॉन नंबर 30 ऑनवर्ड किसी की पूछी जाए 30 से बाद की, तो वो भी आपको आनी चाहिए। तब तो बहुत बेसिक्स है, तो इस पर हम बात नहीं करेंगे। इंक्रीजिंग एनर्जी में याद रखिएगा द एनर्जी ऑफ 4s इज लेस देन 3d, कम होती है बट ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ सबशेल का स्टेटमेंट है, यस वी नो दैट द कंप्लीटली फिल्ड सबशेल इज मोस्ट स्टेबल, पार्शियली फिल्ड इज लीस्ट स्टेबल, हाफ फिल्ड इन दोनों के बीच में होता है। सो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विच ऑफ दीज एटम इज मोर स्टेबल, तो सर्च फॉर द कंप्लीटली फिल्ड सबशेल, आउटरमोस्ट सबशेल, और सर्च फॉर द हाफ फिल्ड, ठीक है। क्लियर, यही कॉन्सेप्ट है नॉर्मल सा। की पॉइंट ये है कि यस यू शुड नो अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक, you should know about the electronic configuration of copper and chromium. Yes, for all transition element, the 4s fill before 3d वाली concept सारे transition element तक आएगा, बिकॉज 4s और 3d जो आपके पास सबशेल्स हैं वो स्टार्ट ही प्रोटॉन नंबर 21 के बाद होते हैं ना। सो ट्रांजिशन एलिमेंट में ये होगा। कॉपर एंड क्रोमियम में इशू क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है बेटा 4s1 3d9, तो हम क्या करते हैं एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में शिफ्ट करके वी मेक इट 4s1 3d10 and it become completely filled and more stable. So whenever they ask you about the electronic configuration of copper, आप ये सेकंड वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 4s1 3d10। अब यहाँ एक बात और सुनिए, देखें आप 4s को 3d के बाद लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। You have to fill 4s before 3d, but you can write it after it. लिख बाद में लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन की पॉइंट ये रहे कि आउटर मोस्ट आपके पास जो इस कॉपर का आउटर मोस्ट सबशेल इज स्टिल 4s, क्योंकि वो फोर्थ शेल का है ये 4s ही हमने से पहले फिल किया क्योंकि इसकी एनर्जी स्लाइटली लोअर है। इन अ केस ऑफ अ क्रोमियम, यस वी शिफ्ट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर टिल हियर टू मेक इट 3d5 व्हिच इज 3d5 करने से क्या होगा कि इट बिकम हाफ फिल्ड, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस में यस फॉर नॉर्मल मेटल आयन आप क्या करोगे बेटा, आप आराम से जो है वो इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करोगे। पहले क्या सोडियम में 10 होते हैं तो Na पॉजिटिव में 11, एल्युमिनियम हैव 13 इलेक्ट्रॉन, सो Al3 प्लस हैव 10 इलेक्ट्रॉन, और फिर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। बट फॉर ट्रांजिशन मेटल आयन की पॉइंट ये याद रखिएगा कि मेथड क्या है कि यू हैव टू राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल and then remove electron as per the charges from the 4s first। यानी आपने आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, अब अगर आपको आयरन 2 प्लस बनाना है तो आप 2 इलेक्ट्रॉन डी से रिमूव नहीं करेंगे बल्कि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे 4s से। 4s fills before 3d and the electron removed from the 4s before 3d। 4s से ही इलेक्ट्रॉन पहले फिल करते हैं, और जब आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है ट्रांजिशन मेटल की, so we remove the electron from 4s before 3d and same applies for the copper and chromium। ये आर्गन वाली बात आपको याद होगी कि for the 18 electron electronic configuration they might use the term argon और फिर से 4s और 3d को लिखें, लेकिन ऐसा as लेवल पे कम होगा। ठीक है बेटा, यहां तक ठीक है। सो ट्रांजिशन मेटल्स में क्या करेंगे, हम नॉर्मल आयंस में भी राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम एंड देन रिमूव इलेक्ट्रॉन। यानी अगर मुझे आयरन 3 प्लस बनाना होता है यहाँ पर, if it would be iron 3 plus, so I first remove 2 electron from 4s, तो 4s हो जाता खत्म, and then 1 electron from 3d, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती 3d5। सही है। एटॉमिक ऑर्बिटल डेफिनेशन याद होनी चाहिए आपको, इट इज द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ठीक है। तो ऑर्बिटल में वो क्लोजेस्ट रीजन होता है अराउंड द न्यूक्लियस वेयर यू यू हैव द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी दैट द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। Each subshell is divided into a different atomic orbital depending on that one atomic orbital can accommodate maximum of 2 electron, ठीक है। तो s में 2 होते हैं, p में 6 होते हैं, तो 3 atomic orbital, d में आपके पास 5 atomic orbital, ठीक है। और atomic orbital के different names होते हैं। s का name जो है वो s को सिर्फ हम s से ही represent करते हैं। p atomic orbitals are px, py and pz on x-axis, y-axis and z-axis, and d में dxy, dyz, dzx, dx square, y square and dz square। इनके नाम आपको पता होना इस लेवल पे जरूरी नहीं है। नाम तो किसी हद तक चलो नाम आपको आप अगर याद कर लेंगे तो शायद कहीं ना कहीं यूज हो जाए। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल इज 100% नॉट अ पार्ट ऑफ अ एएस सिलेबस, ठीक है।
So yes, rules of filling. I'm not going into this detail. आपको पता होना चाहिए कि you have to fill unpaired electron first. 1 2 3 4 यानी order क्या होना चाहिए बेटा? Order होना चाहिए 1 2 3 सारे upward spin के साथ. Then 4 5 with a downward spin. So first सारे unpaired electron fill होंगे, and if it is required then you have to fill the paired electron. सही है. अभी हम questions करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कहां पर हम error करते हैं. A memorizing step that you should know that the shape of s orbital is spherical. 1s is smaller than 2s. 3s is larger than 2s. And the shape of a p orbital is basically a dumbbell shape. और डंबल शेप पी एक्स पे बनाओगे, एक्स पे बनाओगे तो पी एक्स, वाई पे बनाओगे तो पी वाई एंड सो ऑन. यहाँ पर द सेकंड फेज एंड द लास्ट फेज of this chapter is basically the ionization energy. They ask you about the definition for ionization energy. They ask you about the definition of first ionization energy. You can write down the same definition, that this is the energy required to remove 1 mole of electron from 1 mole of gaseous atom to make 1 mole of gaseous 1 plus ion. This is the definition of first ionization energy or general ionization energy. एक reminder है about the standard कंडीशन. टेम्परेचर 298 केल्विन होगा, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होगा. ठीक है. सो क्लोरीन गैस Cl+1 इलेक्ट्रॉन. याद रखो मेरे बच्चों, हमेशा के आयनाइजेशन एनर्जी की इक्वेशन में सारी फिजिकल स्टेट गैस होती हैं और इलेक्ट्रॉन हैव अ वेव नेचर. इसकी कोई फिजिकल स्टेट नहीं होती. एंड दिस इज द वे टू राइट डाउन एंथैल्पी चेंज फर्स्ट आयनाइजेशन स्टैंडर्ड फॉर क्लोरीन गैस. ठीक है. सो ये बात याद रखिएगा कि एटम होता है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे +1 आयन होता है, दोनों गैसेस फॉर्म में होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव करना है. सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी टू रिमूव 1 mole of electron from 1 mole of +1 ion like this. ठीक है. 1 mole of +1 आयन, जैसे कि मैग्नीशियम की एग्जांपल बेटा आपके पास है, टू मेक 1 mole of +2 आयन. ठीक है. तो दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी. ऑल फिजिकल स्टेट आर गैसेस. बहुत कॉमन एरर्स मैंने देखे हैं कि डेफिनेशन सही नहीं आती है. ये बहुत नॉमिनल सा स्टेप है. इसके रिवीजन की ऐसा जरूरत होती नहीं है, लेकिन मैं की पॉइंट इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ कि ताकि ये सारी चीजें आपको दोबारा से एक क्विक रिमाइंडर मिले. ठीक है. तो ये कॉमन है कि whenever they ask you about the definition of a second equation for the second ionization and third ionization energy, तो आप सही नहीं लिख पाते. ठीक है. Or they ask you why the second ionization energy of magnesium is greater than the first one. Very common question. तो आप लिखेंगे after the removal of 1 electron there are more proton, less electrons, so the force of attraction of the nucleus on the remaining electron increases. Second ज्यादा क्यों होती है, first की कम क्यों होती है, ये आपको पता होना चाहिए कि after the removal, हर इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने के बाद प्रोटॉन ज्यादा होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है. सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन एक दफा मुझे याद है कहीं मैंने देखी थी कि तो इट इज द सीक्वेंस ऑफ एनर्जीज टू रिमूव वन बाय वन ऑल द इलेक्ट्रॉन अंटिल ओनली द न्यूक्लियस इज लेफ्ट. ठीक है. अगर 3-4 एक ही एलिमेंट की 3-4 आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दी हुई है तो दीज वैल्यूज आर कॉल्ड द सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू. एंड like the numerical value of the successive ionization energy for any element increases after the removal of every electron. Reason वही है कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्यों बढ़ती है, क्योंकि देयर आर मोर प्रोटॉन्स एंड लेस इलेक्ट्रॉन आफ्टर द रिमूवल ऑफ एवरी इलेक्ट्रॉन. फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी बहुत नॉमिनल सा स्टेप, बहुत अच्छे तरीके से समझा हुआ, लेकिन हमेशा गलत एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है. तो न्यूक्लियर चार्ज यस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, न्यूक्लियर डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. शील्डिंग इफेक्ट, द फोर्स ऑफ रिपल्जन फेस्ड बाय द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू फिल इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. तो ये इस रिपल्जन की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है. जितने शेल ज्यादा होंगे उतने शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, उतना न्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा होगा, उतनी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी. ठीक है. और आपको ट्रेंड याद होना चाहिए, डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर डिस्टेंस कम होता है, डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाता है, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ जाता है. लेकिन ये स्टेटमेंट आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए. अच्छा, ये स्टेटमेंट जरूरी नहीं है कि वो पूरे ग्रुप का ट्रेंड पूछे. They could ask you why the ionization energy of potassium is less than sodium. है ना. अब you look at the periodic table, potassium is below sodium in a similar group. तो आपको उसका आंसर सिंपल सा लिखना है कि potassium has more shells. ठीक है. पोटेशियम के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, मोर शेल्स हैं, इट हैज लार्जर न्यूक्लियर डिस्टेंस एंड शील्डिंग इफेक्ट, और which cancel out the larger nuclear charge.
पोटेशियम के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से उसके शेल ज्यादा हैं, यानी उसका न्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा है, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, जो उसके ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज को कैंसिल आउट कर रहा है। यानी सेम आंसर आपको लिखना है, चाहे वो ग्रुप ट्रेंड पूछे पूरे ग्रुप का और मेटल नॉन मेटल किसी का भी, दिस इज वैलिड फॉर द एंटायर पीरियोडिक टेबल। और चाहे वो आपसे पूछे दो एलिमेंट के दरमियान जो सेम ग्रुप में एक दूसरे के अबव एंड बिलो होंगे। अदर फैक्टर्स में यस, इट इज पॉसिबल दैट टू एलिमेंट्स दे हैव द सेम, उनके उनके पास जो है वो उनका प्रोटॉन नंबर एक दूसरे से बिल्कुल करीब करीब हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, जैसे प्रोटॉन नंबर 11 और 12 दे हैव द सेम शेल, तो न्यूक्लियर डिस्टेंस वगैरह वाली बात इस पे ज्यादा वैलिड नहीं होगी। तो आपने देखना है कि यस इफ द शेल इज सेम डाउन द ग्रुप, तो शेल डिफरेंट होता है ना। तो अगर दोनों एक दूसरे के नेबर हैं लेफ्ट और राइट में, तो आपने क्या बोलना है, आपने देखना है कि भाई शेल सेम है, तो इसका मतलब फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखना पड़ेगा। अब द शेल इज सेम, सब शेल डिफरेंट है, तो पी सब शेल स्लाइटली अवे है, उसका शील्डिंग इफेक्ट थोड़ा सा पी शेल से का ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कम होती है एल्युमिनियम की। और बहुत कॉमन है कि मैग्नीशियम एल्युमिनियम, एक रिसेंट ईयर शायद मॉक एग्जाम था किसी स्कूल का, तो उसमें हमने पूछा था कि भाई आप ये बताइए कि सिलिकॉन के मुकाबले में फास्फोरस की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा क्यों होती है। ठीक है, तो सिलिकॉन प्रोटॉन नंबर 14, फास्फोरस प्रोटॉन नंबर 15, ये आपसे लेफ्ट टू राइट ट्रेंड पूछ रहा था। तो आपको ये बताना चाहिए था कि फास्फोरस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ, अगर आपके पास शेल और सब शेल भी सेम था तो आपको ये चेक करना था, ट्रेंड बताना था कि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्यों बढ़ती है। ठीक है, क्लियर, वो अभी हम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर शेल और सब शेल दोनों सेम है तो पार्शियली फिल्ड हाफ फिल्ड वाला केस होगा। अगर शेल सब शेल दोनों सेम है, दोनों पार्शियली फिल्ड हैं, देन यू हैव टू थिंक अबाउट द पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। रीजन ये है कि इट इज इजियर टू रिमूव अ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ठीक है, एंड दिस इज द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ग्राफ वाली बात है, और इस ग्राफ में आपको इस बात का ख्याल रखना है कि लेफ्ट टू राइट एज इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द सेम आउटर मोस्ट शेल, same outermost shell, the nuclear distance and shielding effect is nearly constant, but the nuclear charge increases due to which ionization energy value बढ़ जाती है। ठीक है, तो सिलिकॉन और फास्फोरस में भी आप यही लिखेंगे कि फास्फोरस का न्यूक्लियर डिस्टेंस और शील्डिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम है सिलिकॉन, बट इट हैज मोर प्रोटॉन मोर न्यूक्लियर चार्ज, दैट्स व्हाई फास्फोरस हैव अ हायर आयनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू सिलिकॉन। दो एलिमेंट्स के बारे में पूछा है या पूरा ट्रेंड पूछा है, आपने सब कुछ लिखना है। और व्हेनेवर दे आस्क यू अबाउट ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 और ग्रुप 5 एंड ग्रुप 6, तो हमेशा ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, जिसमें ग्रुप 2 और 3 में सब शेल डिफरेंट होता है, और ग्रुप 5 और ग्रुप 6 में पेयर्ड अनपेयर्ड का इफेक्ट या पार्शियली फिल्ड और हाफ फिल्ड का इफेक्ट आप एक्सप्लेन करेंगे। दोनों बातें लिखेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो दिस इज बेसिकली द रीजन, और ये नोट में आपके पास है, और इन रीजन को आपको अच्छे तरीके से समझना है। तो चाहे वो पीरियड 2 की बात करे, पीरियड 3 की बात करे, पीरियड 4 की बात करे, यू हैव टू एक्सप्लेन। ये ग्राफ इतने अच्छे तरीके से आना चाहिए कि अगर कोई भी एलिमेंट मिसिंग है तो आपके जहन में शेप है, और आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट टू राइट का ये जिगजैग वाला ग्राफ हमेशा ग्रुप नंबर 1 से स्टार्ट होता है और ग्रुप नंबर 18 पे खत्म होता है। ठीक है, नोबेल गैसेस टॉप पर होते हैं, ग्रुप 1 एलिमेंट जो है वो आपके पास स्टार्टिंग में होता है, और एक्सेप्शनल केस हमेशा ग्रुप 2 3 और 5 और 6 के दरमियान होता है, विच इज बेरिलियम बोरॉन नाइट्रोजन ऑक्सीजन like pair. ठीक है, how to find out the number of outermost electron, this is the concept about the big jump. ठीक है, तो you have to think about, you have to look for or search for the biggest difference between the ionization energy value on the basis of that biggest difference. अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन आता है, वो ना कंपाउंड दे देगा, वो ये बोलेगा कि NCl3 NCl2 इस तरह के कंपाउंड दे देगा और बोलेगा कि आप बताइए कि ये N जो है ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है या कौन से कंपाउंड का फॉर्मूला ठीक है। इस तरह का कोई क्वेश्चन आए ना, तो आपको पहले उस एलिमेंट का ग्रुप नंबर प्रेडिक्ट करना है, फिर आपको पीरियोडिक टेबल से उस एलिमेंट का सबसे कॉमन एलिमेंट, उस ग्रुप का सबसे कॉमन एलिमेंट अपने जहन में सोचना है। जैसे अगर ग्रुप 5 निकल रहा है आपके पास, तो ग्रुप 5 का सबसे कॉमन एलिमेंट है नाइट्रोजन। अब आपने नाइट्रोजन, आपके जहन में आ गया कि नाइट्रोजन किस तरह के कंपाउंड बनाता है, तो नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर का कंपाउंड फॉर्म करता है ना। तो उसकी बेसिस पे आपको उसी तरह से पिक करना है कि ऑप्शन में नाइट्रोजन यानी NH3 से मिलता जुलता जो है वो कौन सा कंपाउंड गिवन है। सही है, ग्रुप 6 आता है तो ग्रुप 6 के एलिमेंट हमेशा 2 बॉन्ड पेयर बनाते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, जैसे ऑक्सीजन वाटर में। तो आपको हमेशा उसी तरह के कंपाउंड्स को सर्च करना है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्सेप्ट द मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसका रिवीजन अलग से होगा। सो
Starting, just have a look at the few questions from the most recent year. So ये question है जनाब, एक सेकंड रुकिएगा. सॉरी, ये पेपर है. Yes. Okay, this is October November 22. Let's see what they ask about the atomic structure. Question number 3. बढ़िया, which is statement about the electron in a ground state. Ground state मतलब normal electronic configuration की बात हो रही है, ठीक है. जो हम electronic configuration lower energy लिखते हैं, that's basically the ground state electronic configuration. Electrons are present in 4 different energy levels. अब सबसे पहला काम ये है कि आप कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे टू सॉल्व दिस कंपाउंड, ठीक है. तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा 1s2 2s2 2p2, ठीक है. 1s2 2s2 2p2. Electrons are present in a 4 different energy level. No, this is wrong. Electrons are present in 3 different energy levels. ठीक है, clear. उसके बाद there are more electrons in p orbital than there are electron in s orbital. That's wrong. p orbital में total 2 electron है, s orbitals में total 4 electrons हैं. So these two statements are wrong. The occupied orbital of the highest energy level is spherical. No, highest energy occupied level is p orbital. ये स्टेटमेंट बहुत समझना जरूरी है, इसलिए ये सेशन है. द ऑक्युपाइड ऑर्बिटल ऑफ हाईएस्ट एनर्जी लेवल इज बेसिकली द पी ऑर्बिटल, एंड पी ऑर्बिटल इज नॉट स्फेरिकल. द पी ऑर्बिटल इज डम्बेल. द ऑक्युपाइड ऑर्बिटल ऑफ द लोएस्ट एनर्जी इज स्फेरिकल, व्हिच इज दिस वन, ठीक है. द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल इज दिस वन, सो दिस इज स्फेरिकल. द राइट आंसर इज डी. सही है बेटा, आगे चलते हैं. फॉर द एलिमेंट सल्फर, which pair of ionization energy has the greatest difference between them? Sulfur belong to the group 6 of the periodic table. सही है, सल्फर किसका है? ग्रुप 6 का है. तो देयर मस्ट बी अ बिग जंप बिटवीन द आफ्टर द रिमूवल ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज देयर आर 6 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. सो द बिग जंप इज बिटवीन 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन. ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था. सही है, there's a big jump after the removal of 6 electrons. So there's a big jump between 6 and a 7 electron. ओके, एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस, ये 2 क्वेश्चंस ही थे इस ईयर में. यस, लेट्स मूव फॉरवर्ड. था ओके. नाउ द नेक्स्ट वन इज same with the variant 1 2. Okay, question number 1 पढ़िए जनाब. Okay beta, why is the first ionization energy of phosphorus P is greater than the first ionization energy of phosphorus atom has one more proton at the nucleus. The atomic radius of phosphorus atom is greater. The outer electron in the phosphorus atom is more shielded. The outer electron in the phosphorus atom is paired. ठीक है, phosphorus is basically 15, which is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3. ठीक है, 3p3. This is basically a half filled
एंड सल्फर के केस में ये सब कुछ ऐसे ही रहेगा, ये बन जाएगा 3p4। अब वो पूछ रहा है फॉस्फोरस की आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू सिलिकॉन से ज्यादा, सॉरी फॉस्फोरस के साथ सिलिकॉन है, तो ये हो जाएगा 3p2। ठीक है। अब फॉस्फोरस एटम हैज वन मोर प्रोटॉन, बात तो ठीक है, आगे चलते हैं। द एटॉमिक रेडियस ऑफ फॉस्फोरस एटम इज ग्रेटर, सिलिकॉन के बाद आता है पीरियोडिक टेबल में फॉस्फोरस, तो उसका एटॉमिक रेडियस बड़ा नहीं हो सकता। द आउटर इलेक्ट्रॉन इन फॉस्फोरस एटम इज मोर शील्डेड, शील्डिंग से तो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कम होती है, अगर अगर मोर शील्डेड होता तो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कम होनी चाहिए थी। द आउटर इलेक्ट्रॉन इन फॉस्फोरस इज अ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये बात भी ठीक है, तो द ओनली रेलेवेंट आंसर इज ए, that the phosphorus has more proton than in its nucleus, ठीक है, it has more nuclear charge, ठीक है, nuclear distance shielding effect is same, in which species are the number of protons, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑल आर डिफरेंट, कई हजार बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है, रिमेंबर दिस। सो हम सिर्फ किसको सॉल्व करें हम सॉल्व कर लेते हैं जनाब, क्लोरीन को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट चाहिए तो न्यूट्रल एटम तो नहीं हो सकता, तो एल्युमिनियम को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज अगर इफ दे आर टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रल एटम सो इट मस्ट बी एनी नेगेटिव और अ पॉजिटिव आइन, सही है। सो क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन, 18 प्रोटॉन, सॉरी क्लोरीन में 18 इलेक्ट्रॉन, 17 होने चाहिए थे -1 की जब, और 18 प्रोटॉन, तो ये तो नहीं हो सकता। सल्फर में 16 आपके पास प्रोटॉन्स आ जाएंगे, 32 16 आपके पास न्यूट्रॉन आ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन आपके पास होंगे 18, ये भी नहीं हो सकता। पोटेशियम में 19 प्रोटॉन आपके पास 19 आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आपके पास 19 होने चाहिए थे, +1 की वजह से 18 आ जाएंगे, और न्यूट्रॉन आपके पास 39 -19 विच इज गोइंग टू बी 20, so the D is the right answer, ठीक है। चलें बेटा आगे चलते हैं, और इसके पिछले वेरिएंट आई थिंक इट्स गोइंग टू बी द सेम वेरिएंट, सेम क्वेश्चंस होंगे इसमें। यस, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स मई जून 2022, और यहां पर आते हैं, which atom exactly have 3 unpaired electron in its unpaired electron in the ground state, बेटा ओके जी। So the question number one, I said the paper was May June. Paper is May June 2022. Variant 1-3. ठीक है जी। Question number one. Read that question. Which atom exactly has 3 unpaired electrons in the ground state and isolated gaseous gaseous एल्युमिनियम एटम, ठीक है, तो एल्युमिनियम विद प्रोटॉन नंबर 13, आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी 1s2 2s2 2p6। इसी तरह से राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन 1s2 2s2 2p2, ठीक है। सॉरी ये मैंने गलत लिख दी, एल्युमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3p1 होगा। एन आइसोलेटेड क्रोमियम एटम, सो क्रोमियम में मैं इसको मुझे याद है आर्गन लिख के, एंड हम फिर लिख लेते हैं 4s1 3d5, ठीक है, so it has 5 isolated gaseous phosphorus atom, phosphorus proton number 15, so 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p3. So you can see the clear answer that the phosphorus has 3 unpaired electron, argon chromium has 5 unpaired electron, carbon has 2 unpaired electron, and aluminum has 1 unpaired electron. So the right answer is D, that it has 3 unpaired electron. Which element has the second smallest atomic radius in the group and the second highest electrical conductivity?
बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन जो चूंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली वहां पर जो है वो चल बात करते हैं बोरॉन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, एक ये किसकी बात हो रही है, ठीक है। सो इसने कहा विच एलिमेंट हैज द सेकंड स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, यानी एटॉमिक रेडियस जो है वो इससे सेकंड स्मॉलेस्ट होना चाहिए। एंड सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन इट्स पीरियड। अब आपको पता है अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस की वैल्यू जो है वो कम होती है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस की वैल्यू जो है वो कम होती है। पीरियोडिक टेबल देखना पड़ेगा। ये रहा पीरियोडिक टेबल। सो यस यू हैव मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम है, और कैल्शियम बोरॉन कहाँ पर है जनाब, बोरॉन यहाँ पर है। बोरॉन इज इन ग्रुप 1, और बोरॉन के साथ सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, और फिर कैल्शियम सबसे नीचे है। और तो इन इट्स पीरियड की अगर बात हो रही है तो सेकंड स्मॉलेस्ट कैल्शियम का रेडियस सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। और बेरिलियम का रेडियस जो है वो, सोडियम का रेडियस जो है वो सबसे कम है। सेम उसकी बात हो रही है ना, पीरियड की बात हो रही है। तो विच एलिमेंट हैज अ सेकंड स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस इन इट्स ग्रुप, अपने ग्रुप में सेकंड स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। तो सेम ग्रुप में आप बोरॉन को तो ले नहीं सकते क्योंकि बोरॉन तो अलग है। ये इसका ग्रुप नंबर 3 है, बी का अगर आप यहाँ पर देखें तो ये तो इसके तो ग्रुप का कोई दूसरा एलिमेंट गिवन ही नहीं है। सिमिलर वे सोडियम के ग्रुप का भी दूसरा एलिमेंट गिवन नहीं है। तो आपके पास कैल्शियम और मैग्नीशियम दो सिमिलर ग्रुप में बचते हैं, ठीक है ना। सेकेंड स्मॉलेस्ट आपके पास रेडियस किसका होगा, जो सेकेंड एलिमेंट होगा डाउन द ग्रुप रेडियस, डाउन द ग्रुप रेडियस की वैल्यू जो है वो बढ़ती है। तो सोडियम और मैग्नीशियम इस स्टेटमेंट पे ये दोनों वैलिड है। अपने ग्रुप में सोडियम का भी जो रेडियस है वो सेकंड स्मॉलेस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट लिथियम है। और अपने ग्रुप में मैग्नीशियम का भी रेडियस जो है वो सेकंड स्मॉलेस्ट है क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट बेरिलियम है। बोरॉन का रेडियस सबसे छोटा होगा अपने ग्रुप में क्योंकि ये सबसे पहला एलिमेंट है। कैल्शियम का रेडियस जो है वो मैग्नीशियम से बड़ा, यानी थर्ड स्मॉलेस्ट रेडियस कैल्शियम का होगा। तो अब पहले स्टेटमेंट से आइदर इट इज सोडियम और आइदर इट इज मैग्नीशियम, ठीक है। पहले स्टेटमेंट से सोडियम या मैग्नीशियम सॉर्ट आउट हो गया। ग्रुप में बात हो रही थी, ठीक है। ग्रुप में से सॉर्ट आउट हुआ कि आइदर इट कुड बी मैग्नीशियम, अपने ग्रुप में मैग्नीशियम का सेकंड स्मॉलेस्ट होता है, और आइदर कुड बी सोडियम, ठीक है। अब सोडियम और मैग्नीशियम में उस सॉर्ट आउट करने के लिए इसने कहा कि सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन इट्स पीरियड, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लेफ्ट टू राइट बढ़ रही है। सोडियम और मैग्नीशियम दोनों सेम पीरियड में, सोडियम से ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी होगी, मैग्नीशियम की, और सेकंड हाईएस्ट होगी। और मैग्नीशियम से ज्यादा किसकी होगी, एल्युमिनियम की। तो सॉर्ट आउट होके मैग्नीशियम शुड हैव द सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो द राइट आंसर फॉर दिस वन इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ तक सही समझ में आ रही है बात। उसके बाद आगे चलते हैं। एंड विच डिफरेंट इलेक्ट्रो नेगेटिविटी बिटवीन टू बॉन्डिंग के दो क्वेश्चन हैं। ये दो दो क्वेश्चन करके सारे पेपर इसी तरह से कवर अप होंगे। अभी मैं सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर के रेलेवेंट क्वेश्चंस की तरफ जा रहा हूँ। सो मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द पेपर 1-2 ऑफ मई जून 2020, ठीक है। एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए जनाब, इजी क्वेश्चन है, हमने इससे पहले क्वेश्चन कर भी चुके हैं। पढ़िए जनाब। इक्वेशन in volume 4 enthalpy changes values are given, ठीक है। which equation represents second ionization energy of sodium, second ionization energy of sodium कौन सी होगी। अब देखें this is basically I1 of sodium, ये first ionization energy है, ठीक है। and this one do not represent any ionization energy value,
ये तो किसी भी आयनाइजेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बिकॉज सोडियम इज इन अ सॉलिड फॉर्म। इन अ सिमिलर वे यहाँ भी सोडियम सॉलिड फॉर्म में, तो दीज टू डू नॉट रिप्रेजेंट एनी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज बिकॉज द इक्वेशन इज डिफरेंट। इसमें एटमाइजेशन भी इन्वॉल्व है, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। एंड दिस इज बेसिकली I1 प्लस I2। तो अगर मैं x में से माइनस कर दूंगा, x विच इज दिस वन में से माइनस कर दूंगा दिस वन विच इज W, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी विच इज द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू। ठीक है, दिस इज द सेकंड प्लस वन, दो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों की वैल्यू है, एंड दिस वन ओनली द फर्स्ट वन। तो अगर सम ऑफ फर्स्ट एंड टू में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो आपके पास सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू, दिस क्वेश्चन This question refer to the isolated gaseous atom in a ground state. Ground state का मतलब lower energy state, in which atom are all electron paired. इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके पास पेयर्ड होंगे। तो बेरियम सबसे पहले देख लेते हैं, प्रोटॉन नंबर क्या है जनाब बेरियम का। द बेरियम का द प्रोटॉन नंबर इज 56। ठीक है, द प्रोटॉन नंबर ऑफ बेरियम इज 56। अब आपको क्या, आपको 56 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी पड़ेगी। तो इसमें आपको जो है वो दिस इज इन अ ग्रुप 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल बेरियम। ठीक है ना, तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो हैं वो s सब शेल में होंगे। ठीक है, और ग्रुप 2 वालों के सब के, जैसे मैग्नीशियम में S2 होता है, बिल्कुल इसी तरह कैल्शियम में भी S2 होता है, और इसी तरह बेरियम में भी S2 होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है। बेरियम है ग्रुप 2 से। ठीक है, तो बेरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S2 पे फिनिश होगी। अब चाहे वो 5s2 हो, चाहे वो 6s2 हो, लेकिन बिल्कुल मैग्नीशियम की तरह ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S2 पे खत्म होगी। और S2 पे खत्म होने का मतलब यही है कि इसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर्ड होंगे, क्योंकि इससे पहले जितने भी 1s2 2s2 आ रहा होगा वो भी सब पेयर्ड होगा। और आउटर मोस्ट सब शेल में भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो याद रखिएगा ग्रुप 2 एलिमेंट्स जितने भी आपके पास होंगे, उन सबके आउटर मोस्ट, उनके सबके पास सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका सही आंसर हमें ए में ही नजर आ गया, लेकिन ये आंसर मिसलीड होगा, टाइम ज्यादा लगेगा अगर आप इसे खुद से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 56 प्रोटॉन्स की लिखने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल मैग्नीशियम वाली ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, एलिमेंट बिलोंग टू द सेम ग्रुप, हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अगेन 2 MCQs थे, और अब आपके पास एक कॉमन आएगा जो हम कर चुके होंगे। पेपर मई जून 22, पेपर 1-1। नहीं, पेपर 1-1 डिफरेंट है थोड़ा सा। ओके, रीड द क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, which atom has its outermost electron in an orbital of this shape, यानी p में होना चाहिए आपके पास, with principal quantum number 3, यानी 3p में इलेक्ट्रॉन किसका होगा। ठीक है, 3p में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 3p में किसमें होगा। p सब शेल, यानी सोडियम तो हो नहीं सकता, कैल्शियम हो नहीं सकता, ये इन सब के, ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के हैं, इनमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एस सब शेल में होता है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट क्लोरीन, प्रोटॉन नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3s2 3p5। मुझे मिल गया आंसर। ठीक है, आप देख रहे हैं क्लोरीन के आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो 3p में है, एंड दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 2, which atom has the same number of electron as the OH negative ion। मैंने कहा था ना आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन, ऑक्सीजन 16, ठीक है, हाइड्रोजन 1। सो OH में आपके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, और OH नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, तो OH नेगेटिव all together have 18 electrons। Which of these have the 18 electron? तो फ्लोरीन तो हो नहीं सकता। ठीक है, इट मस्ट बी अ नोबेल गैस, और नोबेल गैस में आपके पास बी इज सॉरी नियॉन is basically the element that has 18 electron. It has a proton number 80। सही है, क्लियर, इजी क्वेश्चंस।
October November 21 paper 1-3. Okay, October November 21 paper 1-3. पढ़िए जनाब, क्वेश्चन अबाउट द मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखें ये जो मेरा ये वाला मेथड है ना, कि एक टॉपिक का बहुत क्विक रिवीजन 10-15 मिनट्स में किया और फिर ये रिसेंट ईयर के उसके रेलेवेंट क्वेश्चन कर लिए। आपको अंदाजा नहीं है किससे कितना फायदा होगा, किससे आपके टॉपिक का एक बहुत स्टेबल, बहुत स्ट्रॉन्ग क्विक रिवीजन प्लस रेलेवेंट क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। ओके, मास टू चार्ज रेशियो इज गिवन ऑन द एक्स एक्सिस। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमेशा ही ऐसे ही होता है। Relative abundance is given and they ask you what is the relative atomic mass AR of this sample of neon. जनाब कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? हाँ जनाब, क्वेश्चन ये है, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ अनम्यूट करके आंसर करने को। तो मुझे जरा एक सब जवाब का आंसर चाहिए होगा, अगर कोई दे सके तो। ओके बेटा, यहाँ पर आइए, मुझे बताइए कि डू वी हैव टू टेक दिस आइसोटोप 20 एज वेल विच रिलेटिव अबंडेंस और ऑफ 100% लेना पड़ेगा इसे, या हम इसे स्किप करेंगे? इसे यानी भी आई एम लेंगे गिविंग यू सर। टू ऑप्शन। हाँ, आई एम गोइंग टू गिव यू टू ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1, आपको AR कैलकुलेट करने के लिए आप करेंगे 20 इंटू 100, ठीक है, प्लस 21 इंटू 0.3 प्लस 22 इंटू 8 और डिवाइड कर देंगे आप 100 एंड 11.1 से। आई थिंक ऐसे ही होगा ना? 100 पॉइंट कितना हो जाएगा ये? 1.1, 101.1 से, ठीक है। तो आपका AR बताइए कितना आ रहा है बेटा, विच ऑप्शन? सर 108.3। 108.3, यस, सॉरी। ओके, क्या आंसर आ रहा है इसका? कोई सम इसको करेगा कैलकुलेटर पे? ये आ रहा है 20 पॉइंट 15। 20.15। देखिए, कंफ्यूजन ये होता है कि अगर यहाँ पर परसेंटेज अबंडेंस गिवन होती डिफरेंट आइसोटोप्स की, ठीक है, तो फिर ये 100% गिवन नहीं होती। लेकिन अगर कोई एलिमेंट 100% के साथ, यानी वो उस केस में एक सिंगल एलिमेंट नहीं होता बल्कि मिक्सचर होता, या किसी एलॉय की बात हो रही होती कि दिस इज एन एलॉय ऑफ दिस एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट, और उस मिक्सचर की मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से ये डाटा आया हमारे पास। परसेंटेज अबंडेंस जिस एलिमेंट, जिस प्रोटॉन नंबर या जिस एलिमेंट की 100% होती, फिर हम उसे नहीं लेते। लेकिन दिस इज नॉट परसेंटेज अबंडेंस, दिस इज अ रिलेटिव अबंडेंस इज गिवन। और रिलेटिव अबंडेंस जो है वो 1, 2, 3.1, 0.8, 100 कुछ भी हो सकती है। तो रिलेटिव अबंडेंस में आप सबको लेंगे और फिर उसी की बेसिस पे इसे सॉल्व करेंगे। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। क्वेश्चन नंबर 3, which of these element has the highest fifth ionization energy value? Highest fifth ionization energy value का मतलब element must belong to which group of the periodic table? It must be present in a group 6 of the periodic table, ठीक है ना? ग्रुप 6 से बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि फिफ्थ के बाद फिर बिग जंप आएगा। बिग फिफ्थ के बाद देयर शुड बी अ बिग जंप, और बिग जंप के बाद 6 होगी, तो ग्रुप फिफ्थ, तो आपके पास एलिमेंट जो है वो पिक होगा। और ग्रुप 5 का
एलिमेंट आपके पास, सॉरी, ग्रुप 6 का एलिमेंट आपके पास इन सब के अंदर जो है वो एक सेकंड, नहीं, फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी, लेट मी जस्ट राइट, कार्बन की लिखते हैं 1s2 2s2 2p2। एक गड़बड़ आ रही थी ना, इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी। कार्बन इज दिस वन, नाइट्रोजन इज 1s2 2s2 2p3, phosphorus 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, 3p phosphorus 15 होता है ना, सही है। सिलिकॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, प्रोटॉन नंबर 14 होता है 3p4, सॉरी 3p2। सही है। तो अब देखिए किसमें आपको आपको देखने से नजर आ रहा है कि शेल, आउटर मोस्ट शेल में आपके पास जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट है, तो इसका मतलब, सॉरी, मैंने ग्रुप 4 लिखना था, मैंने ग्रुप 6 गलती से लिख दिया, इसलिए मुझे तो ग्रुप 4 का होना चाहिए, क्योंकि 4 के बाद फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के रिमूवल में आपके पास ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसमें तो फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू हाईएस्ट होगी, 3 तो आराम से निकल जाएंगे, फोर्थ के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसमें भी आपके पास सेम सीन है, और इसके अंदर आपके पास थर्ड आयनाइजेशन। लेकिन इस ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि ये 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सेम शेल से रिमूव होंगे, और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के लिए द आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इज हायर। तो इसका सबसे जो रेलेवेंट आंसर है, दिस इज एंड दैट्स द करेक्ट आंसर, व्हिच इज बेसिकली द ऑप्शन ए, इन व्हिच द फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 4 से बिलोंग करना चाहिए, व्हिच इज द कार्बन। एंड द आयन X पॉजिटिव हैज द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन को देख लेते हैं जनाब। क्रिप्टॉन यहां पर है विद 36 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम? व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम? सही है। तो ये बात याद रखिएगा कि एटम के आउटर मोस्ट शेल में, यानी टोटल आपको 32 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए एटम में, सॉरी क्रिप्टॉन में कितने थे जनाब? क्रिप्टॉन में 36 थे। तो आफ्टर द रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगर एक्स पॉजिटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं? 36 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। तो एक्स में कितने होने चाहिए? 38 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। और इनमें से किसमें 38 इलेक्ट्रॉन है? आपको आर्गन का पता है कि 18 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब आर्गन है। तो 18 में अब आप ऐड करेंगे तो 28, 30 एंड 6, 36 आ रहे हैं, 38 आ रहे हैं आपके पास बी में, ठीक है। अच्छा, ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? कि 2 इलेक्ट्रॉन्स के रिमूवल के बाद इन दोनों में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबेल गैसेस वाली नहीं बन रही। हाँ, इन दो में ऑप्शंस है कि आफ्टर द रिमूवल ऑफ दीज 2 इलेक्ट्रॉन, जो लेफ्ट ओवर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किसी नोबेल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ मैच करे। ठीक है। मैंने डी क्यों नहीं टिक किया, कोई बताएगा मुझे? डी और बी बिल्कुल सेम है, मैंने डी नहीं पिक किया, व्हाई? जल्दी से गौर से देखिए, व्हाट इज द एरर इन ऑप्शन डी? व्हाई आई डिडंट पिक डी? 4D10 है। Yes, it should be 3D10. 3D fills हाँ। before after 4s, ठीक है। तो इसने 4D कर दिया, that's the error। चलें नेक्स्ट पेपर पे जाते हैं जल्दी से, which is पेपर अब कौन सा ईयर स्टार्ट होगा है जनाब हमारा? So this is October November 21, paper 1-2, and paper 1-2 is this one. And these are the two questions of atomic structure। जल्दी से देखो भाई। October November 21, paper 1-2। Question number 3. Technetium is a second raw transition element that does not occur naturally on Earth. One of its isotope has 56 neutron. What is the nucleon number of this isotope? डी।
43 गिवन है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल पे जाएंगे, टेक्नीटियम ढूंढेंगे विच इज 43 और 43 में 56 आप ऐड कर देंगे। 43 plus 56 is going to be 99. Excellent beta. Which atom has more unpaired electron than paired electron in the orbital of the principal quantum number 2? More unpaired electron as compared to a paired electron. Carbon की electronic configuration लिखते हैं बेटा 1s2 2s2 2p2। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 की बात कर रहा है। तो इट हैज वन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन की बात करते हैं 1s2 2s2 2p3, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करते हैं 1s2 2s2 2p4। फ्लोरीन की बात करते हैं 1s2 2s2 2p3 सॉरी 2p5। सही है। किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? क्लियरली नजर आ रहा है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 मतलब सेकंड शेल में आपके पास नाइट्रोजन में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर आप यहां पर जाएंगे तो आपके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। बाकी सारे केसेस में यू हैव मोर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड लेस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो मेरे ख्याल में इसका राइट आंसर इज बी। अगर मैं कहीं इनकरेक्ट हूं तो मुझे बता दीजिएगा। सो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 यानी शेल नंबर 2 की बात हो रही है। सही है। आगे चलते हैं जनाब, इसमें यही 2 क्वेश्चन थे। The next year is same October November 21 वेरिएंट 11 सेम पेपर है इसलिए हम इसको स्किप करेंगे। ओके, मई जून 21 13 एंड द क्वेश्चन नंबर 3 सेम है। अमोनियम आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और उसके बाद उसे मैच कर लेंगे, ठीक है। तो अमोनियम आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7 + 4। अमोनियम में 7 + 4 का मतलब हो गया 11 और 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 10 इलेक्ट्रॉन्स same number of electron as ammonia. Which atom has the same number of electrons as ammonium ion? Nitrogen 7, ammonium ion is NH4। तो 7 8 9 10 11 होने चाहिए। पॉजिटिव का मतलब ये है कि 10 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। नो एटॉमिक स्ट्रक्चर क्वेश्चन। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था एटॉमिक स्ट्रक्चर का, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 2 की तरफ जाते, पेपर 1 2 की तरफ जाते हैं। जब एमसीक्यूज में कम क्वेश्चन होंगे तो हो सकता है कि आपके पास जो उसका रेलेवेंट पेपर 2 होगा उसी ईयर का, उसमें उसके उस टॉपिक के ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। एक वेटेज मेंटेन रखने के लिए फिर एमसीक्यूज में उसको कम पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए बेटा। Which is statement about no this which equation represent the first ionization energy of iodine? तो one atom of gaseous iodine, ठीक है। this the 2 का तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड डी आंसर है ना, क्लियर है ना। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। और yeah, there's only one question and then bonding के questions हैं आपके पास। So let's move forward towards the next one paper, which is May June 21 paper 1 May June 21 paper 1 चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2। In which pair of species in which pair of species both have species have only one unpaired p electron? A R argon 1+, ठीक है।
सो आर्गन कहाँ है जनाब? ये है 1+ का मतलब 17 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन का मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 3p5 यानी क्लोरीन वाली होगी। आर्गन 1+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज एग्जैक्ट 17 इलेक्ट्रॉन के साथ क्लोरीन वाली होगी 3p5, ठीक है। और अगर आप C नेगेटिव लिखेंगे तो 1s2 2s2 एंड 2p3 दैट्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ C नेगेटिव। तो इसके बाद तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसने कहा कि इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो A नहीं हो सकता, ठीक है। इन अ सिमिलर वे B, द प्रोटॉन नंबर ऑफ B बोरॉन इज 5, और 5 के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p1। तो इसमें तो अनपेयर्ड है। Ti को चेक कर लेते हैं। टाइटेनियम सॉरी Ti कहाँ है, नजर आ रहा है कहीं भाई Ti आप लोगों को? तो टाइटेनियम प्रोटॉन नंबर है 22 यानी 21 की हम बात करते हैं। टाइटेनियम का प्रोटॉन नंबर क्या था? टाइटेनियम द प्रोटॉन नंबर इज 22। टाइटेनियम 1+ की अगर हम बात करें, टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जनाब आर्गन। मैं यहाँ लिख रहा हूँ टाइटेनियम प्रोटॉन नंबर 22 के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी बेटा आर्गन 4s2 3d2। तो अगर आप टाइटेनियम +1 की बात कर रहे हो, so you have to remove 1 electron from 4s, so it become 4s1 3d2. How many unpaired electron? 1 unpaired electron in this one and 2 unpaired electron. So altogether it has 3 unpaired electron. ठीक है, क्लियर? बात सही समझ में आ गई? यहाँ तो अक्सर बच्चे कंफ्यूजन करते हैं इसमें, तो याद रखिएगा कि if we have any transition element, पहले आप एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फिर 4s से इलेक्ट्रॉन एज पर चार्ज रिमूव करेंगे। तो ये ऑप्शन भी आपके पास गलत हो गया। फ्लोरीन 19 में 3p5 होता है, और ऑल हैलोजेंस हैव 3p5। 3p5 में आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बाद, ठीक है। अब जाते हैं गैलियम की तरफ। गैलियम कहाँ है जनाब? गैलियम कहाँ है आपके पास? गैलियम इज इन सेम ग्रुप एज एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम और बोरॉन, एल्युमिनियम और बोरॉन दोनों में आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3s2 और सॉरी जैसे अगर हम एल्युमिनियम की लिख रहे हैं और 3p1, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैलियम। 3 नहीं होगी, यानी 4 होगी, 5 होगी, व्हाटएवर डिपेंडिंग ऑन द ग्रुप 1। लेकिन अगर कोई भी आपके पास ग्रुप 3 का एलिमेंट है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन s2 और p1 पे खत्म होती है। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दिस वन, सो द राइट आंसर सीम्स टू बी C। ठीक है, सी में दोनों एलिमेंट में आपके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है, क्लियर? This is enthalpy change, and then this is so 21 22 बाकी सारे हम टॉपिकल में ऑलरेडी इनके क्वेश्चंस कर चुके थे। So this is basically a quick revision of atomic structure, और before I finish this one, let's see some paper 2 questions. And the first paper for atomic structure I'm going to discuss October November 22 variant 23। सही है जनाब, पढ़िए, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर P1 P2 दोनों में ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए जरूरी है कि आप इन दोनों को अच्छे तरीके से हम इसे सॉल्व करें, ठीक है। रीड दैट क्वेश्चन। ओके बेटा, ये गैलियम हैज 2 आइसोटोप्स, गैलियम 69 और गैलियम 71। अब रिक्वायरमेंट क्या है कि वी हैव टू गो टू द पीरियोडिक टेबल and we have to search for gallium, and the proton number of gallium is 31। देखिए एल्युमिनियम के नीचे आपको नजर आ रहा है गैलियम is 31। तो मैंने सबसे पहले तो पीरियोडिक टेबल से इसका प्रोटॉन नंबर लिखा which is प्रोटॉन नंबर 31, और जब मैंने 31 लिखा तो मेरे लिए अब इसको सॉल्व करना आसान हो गया। दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 31 होंगे, दोनों में एज इज नो चार्ज ऑन दिस वन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 31 होंगे, और इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके पास आ जाएंगे 69 माइनस 31 38 आ रहा है, और 71 में 2 ऐड हो जाएगा तो इट इज गोइंग टू बी 4।
define the relative atomic mass. So आप लिखेंगे the average mass of all the isotope. Relative atomic mass की definition अभी हमने पढ़ी है. It is the average mass of all the naturally occurring isotope in comparison to 1/12 of the carbon atom. या आप इस तरह लिख दें कि the average mass of all the naturally occurring isotope on a scale where the mass of one atom of carbon is 12 यूनिट. ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन वाला पार्ट है. सही होना चाहिए. देखो डेफिनेशन नॉर्मली टीचर्स पास पेपर करवाते हुए, जैसे मैं भी पास पेपर करवाते हुए इनको बार बार डेफिनेशंस को नहीं लिखूंगा, तो मैं ये अज्यूम करूंगा कि आप डेफिनेशंस अच्छे तरीके से मेमोराइज करेंगे. ठीक है, और अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ गैलियम AR इज 69.73. ठीक है, और उसने कहा द relative isotopic masses of gallium 69 and 71 are this and this. Use this information to calculate the percentage abundance of gallium 69 and show your working. ठीक है, assume that the sample contain only gallium 69 and 71. ये वही मेथड है जिसमें आपको इसको x assume करके सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, तो AR का फॉर्मूला आप लगाएंगे. AR कितना गिवन है बेटा? 69, यानी AR which is equal to 69.723. ठीक है, हम अज्यूम ये करेंगे कि इन दोनों की टोटल परसेंटेज 100 है. ठीक है, और हमने अज्यूम किया कि जनाब 68.926 वाला जो आइसोटोप्स है, लेट्स से इसकी परसेंटेज X% है. सही है, प्लस जो हमारे पास 70.925 है, अब वो कितना होगा? टोटल परसेंटेज अगर 100 है तो इसकी परसेंटेज होगी 100 माइनस x डिवाइडेड बाय द टोटल परसेंटेज विच इज 100. हमने क्या अज्यूम किया कि टोटल परसेंटेज 100%. अज्यूम किया नॉर्मली 100% ही होती है, जिसमें से अगर गैलियम 69 जिसका एग्जैक्ट एटॉमिक AR ये गिवन है, मास टू चार्ज रेशियो गिवन है, वो अगर x है तो दूसरा वाला 100 माइनस x होगा. एंड सॉल्व फॉर x एंड गेट द परसेंटेज अबंडेंस. आपके पास रिलेटिव अबंडेंस आ जाएगी इसकी. ठीक है, क्लियर? तो ये बहुत आराम से इस तरह से आपसे सॉल्व हो सकता है. B part, potassium has two stable isotopes. Both isotopes have the same chemical properties. Explain why both isotope of potassium have the same chemical properties. एक ही one liner answer है, same number of outermost electron. ठीक है, whenever they ask you why two isotopes have the same chemical property, the same thing. State the full electronic configuration of potassium. Potassium is proton number 19. Full electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 and 4s1. Group 1 का है तो s में 1 electron होगा. The first and the second and the third ionization energy value of potassium are this, this and this. Use this information, explain why potassium belong to the group 1. So there is a big jump. ठीक है, तो आप लिखेंगे कि there is a big increase or big jump in the ionization energy value after the removal of first electron. So there is only one electron present in the outer shell. So it's belong to the group 1 of periodic table. ठीक है, ये बात आप जानते थे, बस इसको रिफ्रेश करके आप आराम से लिख देंगे. ठीक है बेटा, तो ये पहला इसमें लकली इस पूरे एक फुल लेंथ क्वेश्चन बना है वर्ड फॉर 10 मार्क्स. और मेरा नहीं ख्याल कि इस क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल कुछ भी इतना ज्यादा है. दिस इज द क्वेश्चन. इसमें है कोई एटॉमिक, यस दिस इज द क्वेश्चन. देखिए जनाब, they're asking about the number of electron, protons and total number of electron, protons and neutrons.
बी पार्ट ही कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट पार्ट इसका नहीं है। अमोनियम आइन में, तो अमोनियम आइन में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें अच्छी तरह याद है, हमने किया था 11 प्रोटॉन्स होंगे आपके पास, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 हो जाएंगे बिकॉज इट हैज अ +1 चार्ज। इन अ सिमिलर वे कार्बोनेट, कार्बन में 6 और ऑक्सीजन में 8। ठीक है, तो 8 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन के अंदर 24 + 6 30 प्रोटॉन्स हो जाएंगे। ये काउंटिंग सही कीजिएगा जनाब। और -2 चार्ज की वजह से इसमें 32 हो जाएंगे। फॉस्फोरस में आपके पास 15 प्रोटॉन्स होते हैं और 4 ऑक्सीजन होंगे। तो जनाब कितने आ रहे हैं जरा ऐड कीजिएगा। फॉस्फोरस 15, ऑक्सीजन 8, 32, 42, 47। सही है, 47 टोटल इसमें आ रहे हैं। 3 माइनस चार्ज है तो 3 माइनस चार्ज के साथ 50 हो जाएगा। लार्जर नंबर आ रहे हैं इसलिए नॉर्मली बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको अच्छे तरीके से इसको डिफाइन करना आना चाहिए, ठीक है। ओके, स्केच अ शेप ऑफ अ 2s and 2px, ठीक है। तो ऑब्वियसली 2s की शेप आप किसी भी साइज की एक स्फेरिकल शेप ड्रॉ कर देंगे और 2px में आप शेप इस तरह ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि उन्होंने शेड किया हुआ, आप भी शेड कर दीजिए। आप शेड ना करें तो भी ये ठीक होगा, कोई मसले की बात नहीं है। बोथ आर करेक्ट, ठीक है। देयर आर मैनी नेचुरल लिक्विड हाइड्रेट्स। ये एक मिक्स क्वेश्चन है जिसमें इन्होंने मिक्स किए हैं बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक, डिफरेंट चीजों को। इसका इसका सॉल्यूशन भी मैंने अपलोड किया हुआ है, तो ये आप वहां से अभी इसके बाद के रिमेनिंग क्वेश्चन देख सकते हैं। मेरा कंसर्न अभी सिर्फ P1 और P2 इन सारे ईयर्स के करवाना है ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर ओनली। नाउ दिस वन इज अक्टूबर नवंबर 21 का पेपर 2-1 रिपीटेड है। देखिए अभी हमने किया ये वाला क्वेश्चन, सही है। तो अब हम जाते हैं जनाब मई जून 21, मई जून 22, पेपर 2-3 एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन, फुल लेंथ क्वेश्चन। ठीक है जी, डिफाइन द आयनाइजेशन। अभी 10 बार डेफिनेशन। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ gaseous atom to make 1 मोल ऑफ gaseous 1 plus ion. Successive ionization energies of element A in table 1.n given. ठीक है जनाब, use the table, reduce the ठीक है जनाब, ग्रुप नंबर प्रिडिक्ट करना है और उस ग्रुप नंबर का रीजन भी दे दीजिएगा साथ। तो ग्रुप बिगेस्ट डिफरेंस इन द आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर, है ना। 13,000 से इट इज 17,000, सो इट बिलोंग टू द ग्रुप 6 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आप लिखेंगे बिग जंप और बिग डिफरेंस बिटवीन द 6th and 7th आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू। बस दैट्स इट, आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। Across the period, there is a general increase a trend in the first ionization energy due to increase in the attraction between the nucleus and the outermost. Explain why the first ionization energy of sulfur is less than the first ionization energy of phosphorus. ठीक है, आपको वही लिखना है कि फॉस्फोरस एंड सल्फर का डिफरेंस हम पढ़ते आ रहे हैं। एक्सप्लेन बाय द फर्स्ट आयनाइजेशन सल्फर इज लेस, तो आप लिखेंगे द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर इज अ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विच इज इजियर टू रिमूव ड्यू टू अ स्पिन ड्यू टू अ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ठीक है, explain why the first ionization energy of sulfur is less than that of the first ionization energy of phosphorus. तो आप लिखेंगे sulfur, the outermost electron of sulfur is
is a paired electron which is easier to remove due to a electronic repulsion. अच्छा, इसमें ना 2 मार्क्स किन चीजों के हैं मैं ये सोच रहा हूँ। हो सकता है कि इसमें 1 मार्क इस बात का लिखा हो कि आप ये बताएंगे आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ फास्फोरस इज आउटरमोस्ट सबशेल ऑफ फास्फोरस इज हाफ फिल्ड, या तो ये रीजन हो सकता है, या समटाइम वो इस बात का भी मार्क देते हैं कि आप ये बताएं कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो सल्फर की ज्यादा होनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम क्यों है। तो आप बोलेंगे लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है, ठीक है, ड्यू टू द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, बट द आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ऑफ सल्फर इज लेस देन बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। तो इन दोनों दोनों बातों को लिखेंगे तो आपको इसके 2 मार्क्स देख, इसको उसको एमएस में देख लीजिएगा कि सेकंड मार्क की इसमें किस बात का इन्होंने लिखा है। अच्छा, इन एल्युमिनियम 2+ ion, the nuclear attraction of the outermost electron is stronger than the sodium. सही है जनाब। Compared to the electronic configuration of electronic structure of aluminum 2+ and sodium, and explain why the third ionization energy of aluminum is greater than the first ionization energy of sodium. Simple question है, आप लिखेंगे in aluminum 2+ there are 2 more protons as compared to electron. Okay, so the force of attraction of the nucleus is more on the remaining electron, whereas in sodium you have the same number of electrons and protons present. ठीक है, तो इसको एक वेल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है, बताना है ये कि the nuclear charge of aluminum is greater, ठीक है, इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, बिकॉज इट हैज मोर प्रोटॉन्स। आप लिखेंगे एल्युमिनियम 2+ हैज मोर प्रोटॉन्स as compared to electrons, so it has larger nuclear charge, ठीक है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की टर्म भी आप यूज कर सकते हैं। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, बेटा अजान हो रही है। ओके बेटा, सो पीरियोडिक टेबल से प्रोटॉन एटॉमिक नंबर देखा, न्यूक्लियॉन नंबर लिखा, माइनस किया, एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। और ये बात याद रखिएगा कि 4s1 3d10 ही लिखना है। हाँ, बस एक ऑप्शन है कि यू कैन राइट 4s आफ्टर 3d, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि सब कुछ लिखा, आपने लिखा 3d10 4s1। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, देखिए आर्गन, गौर से सुनिएगा बात, ठीक है, 4s2 3d1 एक कोई वेनेडियम है आई थिंक, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो इसके राइट साइड वाला होगा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d2, सही है। अगर मैं इसे इस तरह लिखूं तो आपको कोई एतराज नहीं होगा, आर्गन 3d1 4s2। in a similar way if I write it like this, argon 3d2 4s2, सही है ना। सिर्फ मैंने 4s को बाद में लिखा है, फिर मैंने पहले ही किया है। क्या आप ये बात यहां रियलाइज कर पा रहे हैं कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन नोबल गैसेस जब हम मूव करते हैं तो द इनर 3d शेल में इलेक्ट्रॉन्स एड अप हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इनटू अ इनर शेल, ठीक है। इनर शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से क्या होता है कि इसका शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, क्योंकि इनर शेल की वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाए। नोबल गैस सॉरी ट्रांजिशन मेटल्स में लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है और शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है, and this increase in shielding effect cancel out the increase in nuclear charge. That's why transition metals have a similar radius, ठीक है, they have a similar radius and almost similar ionization energy value. अब अगर आपसे पूछेगा why transition metals have the similar ionization energy value, तो आप बोलेंगे from left to right as the electron is added into an inner 3d subshell, shielding effect increases which cancel out the increase in nuclear charge, ठीक है। ये बात मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप लोग भी अपने पास लिख लीजिए। ट्रेंड ऑफ ionization energy in transition metals,
और ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू रिमेन्स सेम, ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। क्लियर? आप लिखेंगे लेफ्ट टू राइट as the electron is added to inner 3D subshell, मैंने प्रूफ दिया इसका, ठीक है। The shielding effect increases, due which cancel out the increase in nuclear charge. So they have similar atomic radius, वो भी तकरीबन ज्यादा इंक्रीज नहीं, डिक्रीज नहीं होता, ठीक है। एंड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिए अपने पास, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, राइट डाउन दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज वेल। मैं वापस इस पेज पे आ रहा हूँ। So at this stage, we're almost done. एक session दिया just to do the atomic structure complete revision and with all type of question, and that's like going to be the theme of all the remaining chapters, and we try to finish it everything as quickly as possible. And in the meantime, whenever I get time, I'll call you guys to for the yearly past papers, जो कि थोड़े बहुत साथ साथ करते रहेंगे recent years के. At the same time, if you have any queries, you can send it to me. So just keeping it till here. If you have any question, you can ask now.